अभी सबसे ज़्यादा जो वायरल और इट्स समटाइम्स एंड आई फील बैड लाइक आई हैव सीन वेरी गुड पीपल falling prey to digital arrest. Now I'm like little bit tech savvy and everything, right? But I understand if someone calls my father that, your son is, you know, is in lockup and if you want him, and there is a fake noise, bachalo types, and where it looks foolish for people like us, but I've seen like very good people, people of, learned people falling prey to this. So, can you tell us like what is ये initial arrest इतना कैसे कर कैसे पाते हैं? What makes them so believable and why people are falling prey to it? So during my trainings, when I've come across people who have, and when I'm saying these trainings, I also spoke to a college student about it. I also spoke to senior citizens about it, including male, females. So one thing that come forward is the panic situation that these scammers create. Okay. Obviously, there's a technological gap. They don't know कि ये क्यों हुआ कैसे हुआ. I mean, just to give an example, recently I had booked my club and there was this other lady who had also booked the club same date, same time as per her. Now, where was the gap? Because she thought that she has used MyGate app and she has booked the club, but it did not happen. वो उनको समझ ही नहीं आया कि उन्होंने जो क्लब बुकिंग की वो हुआ कि नहीं हुआ और उनको लगा कि हमने कर लिया है एंड वी बोथ वेंट टू द सेम प्लेस सेम टाइम. देयर वाज अ क्लैश. तो टेक्नोलॉजिकल गैप जो है वो अवेयरनेस नहीं है. इवन कॉलेज यूथ्स डोंट हैव दिस सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस कि हमारे फ़ोन में जो एल्गोरिथम्स हमें रिपीटेड मोड में दिख रहे हैं वो क्यों दिख रहे हैं. हमारे माइक्रोफोन्स ऑन हैं हमारे फ़ोन के इसलिए वो हमारी आवाज़ सुन लेते हैं. ये सारी अवेयरनेस ही नहीं है. You're just using something for the sake of using, but you're not aware about it. But for the scam part, the panic situation is what the seniors told me कि वो उस moment में हमारा बच्चा बाहर पढ़ाई कर रहा है. Correct. और हमारे पास उसकी वीडियो दिख रही है, फोटो दिख रही है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है. और वैसे भी जो हमारे हाउस होल्ड है आजकल बहुत न्यूक्लियर सेटअप में हो गए हैं. तो देयर इज नो वन टू गो टू एंड आस्क. उतना टाइम ही वो नहीं देते आपको. एंड देन दैट पैनिक सिचुएशन लीड्स देम टू फॉल इजीली इनटू द ट्रैप एंड द टेक्नोलॉजिकल गैप. The less awareness about the technologies that are out there. ये deepfake क्या है, कैसे मेरे बेटे का वीडियो दिख गया मुझे स्क्रीन पे, कैसे हो जाता है ये, तो ये उनको पता ही नहीं है. तो that is these are 2-3 things that make them an easy target. Especially like एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है कि I understand senior citizens and people, a lot of people, like not just senior citizens, a lot of people are not that tech savvy, right? Like they understand WhatsApp, they understand social media, and I think but they understand. I mean WhatsApp पे डीपी आपकी दिख रही है, वो कितनों को दिख रही है, privacy कैसे करना है, नहीं करना है. No. So you know there is WhatsApp. The app is, you know about the app. लेकिन उसके अंदर जो फीचर्स हैं कभी हमने वो देखे ही नहीं खोल के, कभी उनको पढ़ा ही नहीं. हमें बस ये पता है कि व्हाट्सएप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, हमें मैसेज करना है, ऑडियो रिकॉर्ड करना है, पिक्चर भेजना है, दैट्स इट. तो वो एक जो लिटरेसी का बेसिक फंडामेंटल लिटरेसी क्या है कि आप कोई भी चीज़, अगर आप चश्मा भी खरीदने चाहते हो तो उसके कौन सी कंपनी से खरीदना है मुझे, उसका डिज़ाइन क्या होगा, मेरे चेहरे पे क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है, मेरी पावर है कि नहीं है, मुझे वो स्टेप्स है ना. तो ये स्टेप्स हम टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं फॉलो करते हैं? I think a lot of onus is also on the younger generation to train their immediate family who are of that age. But honestly, they are not doing this. I think Seniors are still doing it. As per my experience, seniors who are retired, they still have that mechanism in their mind कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं, जिस चीज़ में हमने पैसा लगाया है, हम उस चीज़ की एक एक चीज़ को समझें. बट द यंगस्टर्स एक्चुअली आर नॉट डूइंग दैट. उनको लग रहा है कि वो उस भेड़चाल में है कि मुझे रील डालनी है इंस्टाग्राम पे, मुझे वायरल करना है, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है. लेकिन उसका हर चीज़ की एक मैकेनिज्म है. हमने भी अगर जर्नलिस्ट हम बने हैं तो हमने पढ़ाई की है. उसके एथिक्स, उसकी इंटेग्रिटीज, उसके सारे जो पॉइंट्स हमने पढ़ाई की है. तो प्रॉब्लम वहाँ पे है कि आप बिना किसी चीज़ को ठीक से समझे जाने आप उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना रहे हो. वाई? एंड ये आज की ज़रूरत नहीं है. दिस वॉज एक्चुअली द नीड ऑफ द आवर बैक व्हेन आई हैड आउटपुट. ये अवेयरनेस तब होनी चाहिए थी. तो शायद हम
आज सोशल मीडिया के केस में अपने आप को फिर भी बेटर रख पाते, लेकिन वी हैव ऑलरेडी मिस द बस 20 years नाउ ऑलमोस्ट। और 2003-4 में शायद था व्हेन आई वाज इन कॉलेज, यस दैट टाइम। तो 3 से 25 चल रहा है, एटलीस्ट 20 साल हो चुके हैं, तो वो अवेयरनेस तो वहीं खत्म हो गई। एंड अब इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी टेक्नोलॉजी है, हर 2 दिन में कुछ चेंज हो जाता है, नई ऐप आ जाती है, नया कुछ आ जाता है। तो हमारे अंदर से वो मैकेनिज्म जा चुका है कि हम कोई भी चीज़ खरीदें, पैसा जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हम ठीक से समझें और फिर उसकी अपनी लाइफ में उसको हम नीड बेस्ड लेके आए। नो, वी जस्ट वांट इट एंड विल डू इट।